ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے برآمدے میں صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے قرآن کی تعلیم دے رہے تھے۔ اسی دوران حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ سیدھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اگر حسین ابھی اپنے نانا کے پاس پہنچ گئے تو رسول اللہ ان کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، ان کے ساتھ کھیلنے لگیں گے، اور ہم سب صحابہ رسول پاک کے مبارک کلام اور قرآن کی تعلیم سے محروم رہ جائیں گے۔ اس لیے انہوں نے حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے گزارش کی کہ حسین کو روک لو۔ پھر حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حسین کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور پیار سے کہا، بیٹے حسین، تمہارے نانا اس وقت بہت مصروف ہیں، وہ اہم تعلیم دے رہے ہیں، تم ابھی گھر چلے جاؤ، بعد میں اپنے نانا سے ملاقات کر لینا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باتیں سن کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، تم لوگ میرے نانا کی باتیں اس لیے سن رہے ہو کیونکہ جانتے ہو کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن میں تو ان کا نواں ہوں، پھر بھی تم مجھے اپنے نانا تک جانے سے روک رہے ہو۔ کیا میں اپنے نانا سے ملنے کے لائق نہیں ہوں؟ کیا تم سب یہ سوچتے ہو کہ میں ان سے کم ہوں، جبکہ میں ان سے کسی بھی صورت میں کم نہیں ہوں؟ جب یہ الفاظ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں تک پہنچے تو وہ انتہائی ناراض ہو گئے۔ انہوں نے فوراً حذیفہ کی گود سے حسین کو اپنی آغوش میں اٹھا لیا اور غصے سے بولے، اے میرے بیٹے، تم کیا بیہودہ باتیں کر رہے ہو؟ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ وہ رسول اکرم ہیں، رحمت العالمین ہیں؟ ان کے وسیلے سے ہی یہ پوری کائنات پیدا کی گئی ہے۔ ان کے مقام اور شان کے سامنے کسی کی بھی مثال نہیں دی جا سکتی، اور تم میرے بیٹے ہو کر رسول اللہ کے شان میں ایسی گستاخی کی باتیں کرتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ سخت الفاظ سن کر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کچھ اور کہنے لگے، مگر حضرت علی نے انہیں موقع ہی نہ دیا۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے حسین کا منہ پکڑ لیا، اتنی شدت سے پکڑا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دانتوں کے درمیان چوٹ لگ گئی اور ان کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ جب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ سے خون نکلنا شروع ہوا تو وہ درد سے چلانے لگے، اے نانا کے صحابہ، تم لوگ مجھے میرے نانا کے پاس کیوں نہیں جانے دیتے؟ تم جس رسول کی بیان سن رہے ہو، میں اس رسول سے کسی بھی صورت میں کم نہیں ہوں۔ میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس رسول سے کئی گنا افضل ہوں۔ یہ الفاظ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے، اے علی، تمہارا بیٹا حسین رسول کی شان میں گستاخانہ باتیں کیسے کر رہا ہے؟ اگر میرے بیٹے عبداللہ کی زبان سے ایسا ایک لفظ بھی نکلتا تو میں اسے اسی وقت ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حسین کو لے کر مسجد نبوی سے باہر نکلنے لگے۔ اسی وقت دوسری طرف سے رسول اللہ کی آواز آئی، اے علی، میرے جگر کے ٹکڑے، میرے نوا کو میرے پاس آنے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو انہوں نے حسین کو اپنی گود سے چھوڑ دیا۔ جیسے ہی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آزادی ملی، وہ دوڑتے ہوئے اپنے نانا کی گود میں جا کر بیٹھ گئے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے اور گالوں پر چومتے ہوئے کہنے لگے، اے میرے پیارے نانا، میں تو صرف آپ کے پاس آنا چاہتا تھا، لیکن آپ کے ایک سیابی حذیفہ نے مجھے آپ کے پاس آنے سے روک دیا، اور میرے اپنے والد حضرت علی، انہوں نے میرے منہ کو اتنی سختی سے دبایا کہ دیکھیے نانا، میرے ہونٹ پھٹ گئے ہیں اور خون نکل رہا ہے۔ اسی غصے اور درد میں مجھ سے نکل گیا کہ میں اس نبی سے کسی صورت کم نہیں ہوں، بلکہ سب سے افضل ہوں۔ نانا، آپ برا مت مانیے، مجھے معاف کر دیجئے۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے فرمانے لگے، اے میرے نواح، میں نے کچھ بھی دل پر نہیں لیا اور میں نے تمہیں معاف کر دیا۔
इतने में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप हुसैन से पूछिए कि उन्होंने क्यों कहा कि वो आपसे कई गुना अफजल हैं और आपसे किसी भी सूरत में कम नहीं है। हम तमाम सहाबी इकराम ये जानना चाहते हैं कि उनके दिल में ये बात कैसे आई। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, ऐ मेरे नवाह, तुम ऐसे ही कोई बात नहीं कहते, जरूर इसके पीछे कोई राज है। तुमने क्यों कहा कि मैं रसूल से कई गुना अफजल हूं और उनसे किसी भी सूरत में कम नहीं हूं? मेरे सहाबा भी इस बात को जानना चाहते हैं। हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह की बात सुनकर अर्ज किया, नाना, जब आपके सहाबा जानना चाहते हैं तो अब मुझे बताना ही होगा। अच्छा नाना, आप बताइए आपके वालिद का नाम क्या है? इसके जवाब में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे वालिद का नाम अब्दुल्ला है। इस पर हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, तो क्या आपके वालिद अब्दुल्ला जन्नत में जाएंगे? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैं रसूल होकर भी ये यकीन से नहीं कह सकता कि मेरे वालिद जन्नत पाएंगे या नहीं। हाँ, अल्लाह चाहे तो उन्हें जन्नत अता कर दें और चाहे तो ना भी करें। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह बात गौर से सुनी, फिर दोबारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, नाना, अब बताइए मेरे वालिद का नाम क्या है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे वालिद का नाम हजरत अली है। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर पूछा, क्या मेरे वालिद जन्नत में जाएंगे? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, तुम्हारे वालिद जरूर जन्नत में जाएंगे। तुम्हारे वालिद को दुनिया में रहते ही जन्नत की मंजूरी मिल चुकी है, वो अशराए मुबश्शरा में शामिल हो चुके हैं। फिर छोटे बादशाह हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, ऐ मेरे नाना, आप अपने सहाबियों से पूछिए, अल्लाह के नजदीक आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला ज्यादा कीमती हैं या मेरे वालिद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु? ये बात सुनकर रहमतुल आलमीन सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू मोती की तरह बहने लगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों, सुनो, मेरे वालिद हजरत अब्दुल्ला जन्नत में जाएंगे या नहीं, इसकी जमानत मैं रसूल होते हुए भी नहीं दे सकता, लेकिन हुसैन के वालिद हजरत अली को दुनिया में रहते ही जन्नत की मंजूरी मिल चुकी है। हुसैन के वालिद को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने काफिरों के लिए शेर बनाकर भेजा है और उनके लिए अल्लाह के रसूल ने ये लफ्ज फरमाए कि उनका लक़ब है असदुल्लाह गालिब। बेशक मेरे वालिद अब्दुल्ला से कहीं ज्यादा मुकाम और रुतबा हुसैन के वालिद अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक उस वक्त हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर अर्ज किया, ऐ मेरे नाना, अब बताइए आपकी वालिदा का नाम क्या है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी वालिदा का नाम आमिना है। हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दोबारा पूछा, क्या आपकी वालिदा जन्नत में जाएंगी? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मेरी वालिदा आमिना जन्नत में जाएंगी या नहीं, इसकी जमानत मैं रसूल होते हुए भी नहीं दे सकता। मेरी सिफारिश से अल्लाह चाहे तो जन्नत दे सकते हैं और चाहे तो ना भी दें। हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह सुनकर कहा, नाना, क्या आप जानते हैं मेरी माँ कौन है? मेरी माँ है जन्नती औरतों की सरदारनी। मेरी माँ ने तो दुनिया में रहते ही जन्नत की मंजूरी हासिल कर लिया और जब तक मेरी माँ जन्नत में नहीं जाएंगी, कोई और औरत जन्नत में नहीं जा सकती। फिर उन्होंने कहा, अब आप अपने सहाबों से कहिए कि आपकी माँ आमिना अल्लाह के पास ज्यादा कीमती है या मेरी माँ फातिमा? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू टपक रहे थे और उनकी दाढ़ी मुबारक भीग रही थी। तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबों से फरमाया, ऐ मेरे सहाबो, मेरी माँ आमिना जन्नत पाएंगी या नहीं, इसका जमानत मैं भी नहीं दे सकता, अल्लाह ताला ही तय करेंगे। लेकिन हुसैन की माँ फातिमा ने तो दुनिया में रहते ही जन्नत की मंजूरी पा लिया, वो अशराए मुबश्शरा में शामिल हैं। अल्लाह के सामने मेरी माँ आमिना के मुकाबले हुसैन की माँ फातिमा लाखों गुना ज्यादा कीमती हैं। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ मेरे नाना, जरा ये तो बताइए कि आपके नाना का नाम क्या है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे नाना का नाम वहाब ज़ुहरी है। इस पर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, नाना, आपके नाना वहाब ज़ुहरी को सिर्फ चंद लोग ही जानते हैं और इसका जमानत भी नहीं है कि वहाब ज़ुहरी जन्नत पाएंगे या नहीं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेरे नाना कौन है? जब हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह जुमला कहा तो उसी वक्त हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठ खड़े हुए। वो बैठे नहीं रह सके और कहने लगे, बेटा हुसैन, हम सहाबा इकराम ने कभी इस तरह सोचा ही नहीं
तुम्हारे नाना वहाब ज़ुहरी को तो लोग नहीं जानते, लेकिन तुम्हारे नाना हजरत मोहम्मद को पूरी दुनिया जानती है। तुम्हारे नाना रहमतुल आलमीन है, पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर आए। अगर तुम्हारे नाना को अल्लाह ताला पैदा ना करते तो ये पूरी दुनिया भी पैदा ना होती। मैं उमर गवाही देता हूं कि तुम्हारे नाना का मुकाम और रुतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक वहाब ज़ुहरी से करोड़ों गुना बुलंद है। तुम्हारे नाना की शान और इज्जत की दुनिया के किसी इंसान से बराबरी नहीं की जा सकती। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ मेरे नाना, अगर वालिद की तरफ से मैं अफजल हूं, माँ की तरफ से भी मैं अफजल हूं और नाना की तरफ से भी मैं अफजल हूं, तो फिर आप किस तरह से मुझसे अफजल हुए? ये सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हुए और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने दोनों हाथों से उठाकर ऊपर कर लिया। फिर सहाबा इकराम से फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों, जरा देखो तो सही, मेरा ये नाना भाई क्या मुझसे अफजल नहीं है? इतने में हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौड़ते हुए आए और रसूल अल्लाह के हाथों से हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी गोद में ले लिया। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, ऐ मेरे भाई अली, मैं तो एक सीधा साधा इंसान हूँ, उमर हूँ, लेकिन तुम तो इल्म वाले हो। तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत इल्म अता किया है, फिर भी तुम कैसे इस मासूम बच्चे की ओंठ पर चोट कर सकते हो? हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सहाबा इकराम बहुत मोहब्बत करते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनसे बेहद मोहब्बत फरमाते थे। फरिश्ते भी हुसैन से मोहब्बत करते थे और खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन भी हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत करते हैं। एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में खास जिम्मेदारी के तहत मौजूद थे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा कर रहे थे। जब रसूल अल्लाह सजदे में गए तो न जाने कहां से हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौड़कर आ गए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन पर चढ़ बैठे। रसूल अल्लाह के सिर मुबारक पर बाबरी जुल्फें थीं। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन जुल्फों को पकड़ लिया और गर्दन पर बैठकर कहने लगे, चल मेरे घोड़ा चल, चल मेरे घोड़ा चल। हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त रसूल अल्लाह के साथ खेल रहे थे, मानो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका घोड़ा हों। लेकिन उस वक्त भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में ही थे और तस्बीह पढ़ रहे थे, सुभान रब्बियल आला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्बीह 3 बार, 5 बार, 7-7 बार, यहां तक के 10 बार तक बढ़ा दी। फिर एक लम्हे के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा, अगर मैं इसी तरह लंबे वक्त तक सजदे में रहा तो न जाने अल्लाह रब्बुल आलमीन कहीं नाराज ना हो जाएं। ये ना समझ लें कि मैंने अपने दोस्ताना नाती को पाकर खेल कूद शुरू कर दी और अल्लाह को भूल गया हूं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये सोच ही रहे थे कि अब सजदे से सर उठा लूं, उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पुकारा, ऐ मेरे हबीब, हुसैन ने आपको घोड़ा बनाया है, वो आपकी पीठ पर सवार है। जब तक हुसैन आपकी पीठ पर है, आप सजदे की हालत में ही रहिए। उस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में ही रहे। एक और रिवायत में आता है कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ खेल रहे थे। उस वक्त हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे नाना, आप घोड़े की तरह बन जाइए, मैं आपकी पीठ पर सवार हो जाऊंगा। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े की तरह बैठ गए और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी मुबारक पीठ पर चढ़ गए। फिर हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे नाना, आप फिर से घोड़े की तरह चलिए और आवाज निकालिए। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा घोड़े की तरह चलकर आवाज निकाली।